Hello, students. Good morning to all of you. I hope you all are in good health and taking great care of yourself. Welcome back to our English class. As you know, students, that in the previous class we started chapter number 21, that is kinds of sentences, and we studied assertive sentences, right? We also learned what is a sentence. A sentence is a group of words that makes complete sense, and on the basis of the function it is divided into four categories. And we also saw what are the functions that are being performed. Over here we can see that it functions just like a statement. It can function like a question. It can also be used to show a strong liking or to show your emotions, and the last one was making a request, right? We already saw that the sentence performs different functions, and depending on that we also learned that the sentences are divided into four types, right? That is assertive, interrogative, imperative, and exclamatory. We have already learned assertive sentence. Assertive means the sentence which gives you some information, right? It starts with capital letter. The first letter has to be capital and it ends in full stop, right? We have already learned that. And the assertive sentence can be again divided into two parts, that is a negative one and a positive one. If a sentence has no or not in the sentence, then it is called negative sentence. And if the sentence does not have those kind of words, right, मतलब no या not ऐसे कोई words नहीं है, then it is called positive sentence. We already completed exercise A, which is related to it. I would be sending you the PDF of all the exercises together once we are done with the chapter, and I am already doing the exercises during the video, so you can write it down from that. Okay, now today we are going to learn the second type of sentences, that is questions or interrogative sentences. Questions or interrogative sentences are the sentences which are used to ask questions. वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं? टू आस्क क्वेश्चंस. ओके, क्वेश्चंस पूछने के लिए जो सेंटेंसेस यूज़ होते हैं उसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. एंड वी पुट क्वेश्चन मार्क आफ्टर देम. उसके पीछे हम क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल, हु इज़ द मैन इन द रेड हैट, या फिर व्हाट इज़ इन योर बैग, इज़ मोहन सिक टुडे. वेल, इफ़ यू नोटिस स्टूडेंट्स कि यहाँ पर पहले जो दो सेंटेंस है, राइट, हु और व्हाट से स्टार्ट होता है, मतलब उसके अंदर WH वाले क्वेश्चन है ना. और जो तीसरा वाला है वो हमारा येस नो वाला क्वेश्चन है. मतलब येस नो क्वेश्चन किसको कहा जाता है? जिसके अंदर आपको आंसर येस या नो में मिलता है. जैसे कि इज़ मोहन सिक टुडे, तो उसका आंसर हाँ भी हो सकता है और ना भी हो सकता है. वी कैन राइट येस मोहन इज सिक टुडे, या फिर नो मोहन इज़ नॉट सिक टुडे, राइट. So it could be either yes or either no. Okay, and WH वाले words कौन कौन से आते हैं जो questions बनते हैं? We have over here who, whose, whom, which, what, when, where, why and how. Sorry. So here we have some वर्ड्स जो WH से बिगिन होते हैं, राइट. इट बिगिन्स विथ WH. जैसे कि हु है WH, हुज, हुम, विच, वॉट, व्हेन, वेयर, वाई. ओनली हाउ इज द वर्ड which doesn't start with WH, but yes, it comes under the category of WH questions, क्योंकि हम हाउ भी यूज़ करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए. ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में दो टाइप के वर्ड्स यूज़ करके क्वेश्चंस बनते हैं. एक होता है WH वाला वर्ड, है ना, जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, WH क्वेश्चंस. एंड द सेकेंड वन इज येस नो. येस नो क्वेश्चन, मतलब जिसका आंसर या तो येस या फिर
नो हो सकता है, राइट. नाउ हियर we have an exercise. We need to put the correct punctuation after each sentence and state its kind. Okay. Now first one. Whose cat is this? Right. So what is this? Whose cat is this? So what is the punctuation mark we are going to put over here, students? We are going to put question mark, क्योंकि ये क्या है? Question है. Right. So we are going to put, I'll put question mark over here. That would be way easier. Just a minute. And the type of sentence is interrogative, right? So you need to write here interrogative. Now I am not able to write the full, so I'll start from here. Okay. Is this your bag or mine? What do you think? What it is? Is it a question or a statement? It is a question, right? So again we are going to write interrogative. ठीक है. Third one. All that glitters is not gold. Now this is a normal statement, or you can say it's a fact. So we are just going to put a full stop at the end, and this is an assertive sentence, or you can say a statement. Let's see fourth one. Whose team won the trophy? Well, this is again a question, so we are going to put question mark and we would be writing interrogative. Okay. Let's see next one. The evening is cool and pleasant. Now here, students, this is also a simple sentence, so we'll put full stop and we are going to write assertive sentence. Okay. Let's see next one. Do you like to travel? Well, what do you think, student? Is it a question or a statement? Well, it is a question, right? So we will put question mark over here and we are going to write interrogative. Two and two makes four. So here again it's a simple sentence, and so we are going to put full stop, and it's an assertive sentence. Now let's see the last one. Who did this task? Now this is again a question, right? So यहाँ पे full question mark और हम क्या लिखेंगे? Interrogative. Okay. Now remember students कि आपको ये जो boxes दिए हुए हैं उसके अंदर punctuation mark लिखने हैं. I am not able to put it over here with the finger. So when you write it with the pencil, make sure कि आप अपने punctuation mark box में डालो और ये जो बाजू में space है वहाँ पे interrogative या फिर जो assertive है वो लिखना है. Okay. Now let's see next thing. What is there? Okay. Now let's see how to form yes or no questions. Okay. अभी yes or no questions कैसे बनाए जाते हैं from statements. If we have an assertive sentence, then how are we going to make it into yes and no question? Okay, so there are two ways. First one is if the sentence has an auxiliary verb. Auxiliary मतलब अगर sentence में helping verb है, right? तो उसको हमें क्या करना है? Subject से आगे लगाना है. So you need to remember कि normally जो statement होता है उसमें पहले subject आता है और उसके बाद verb आता है, right? And then remaining portion. जब हम उसको क्वेश्चन बनाते हैं तो हमारे पास जो वर्ब है, ओके, नॉट एन एक्शन वर्ड. एक्शन वर्ड मतलब रीड, राइट, प्ले, डांस, सिंग, ईट, है ना, ये सारे जो वर्ब्स है जिसको हम एक्शन वर्ड कहते हैं, वो एक्शन वर्ड हम आगे नहीं ला सकते. उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि यहाँ पर दिए हुए हैं इज़, एम, आर, वॉज, वर, राइट, कैन, कुड, विल, वुड. अगर ये सारे वर्ब्स आपके पास सेंटेंस में है, राइट, इफ़ यू हैव बी वर्ब्स जो हमने आगे भी पढ़ा हुआ है, इफ़ यू रिमेंबर, इज़, एम, आर अगर सेंटेंस में है, राइट, या फिर
वॉज वर है हमारे पास अगर सेंटेंस में, और इफ़ वी हैव अदर ऑक्सिलरी वर्ब्स जैसे कि विल है, वुड है, राइट, देन इफ़ यू हैव मे, कैन, कुड, राइट, माइट, नो नॉट माइट, सॉरी, अगर ये सारे वर्ड्स हैं आपके सेंटेंस में, verb these are also called verbs, okay students, these all is, am, are, was, were, will, would, may, can, could, इसको भी हम verbs ही कहते हैं, लेकिन इसको हम auxiliary verb कहते हैं, मतलब helping verb की तरह यूज़ किया जाता है सेंटेंस में। तो जब हमारे पास ये सारे helping verbs है सेंटेंस में, right, so what are we going to do, we are just going to bring first ये जो हमारे auxiliary verb है, I am just writing auxiliary, ठीक है, आपको याद रखना है ऑक्सिलरी मतलब ये सारे वर्ब्स, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो पहले हम लिखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद होगा हमारा सब्जेक्ट, एंड देन वी विल राइट आवर मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब कौन सा वाला वर्ब, यहाँ पर मेन वर्ब मतलब हमारा एक्शन वर्ड, जो एक्शन दिखाता है, राइट, कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सी एक्शन कर रहा है, और यू कैन से सॉरी the subject, what action is being carried out by the subject, right, that is called action word. Let's see the example ताकि आपको clear हो जाए। We are going to school today. So here students are है हमारे पास जो auxiliary verb है, तो हमें क्या करना है, are को पहले लेना है और subject को बाद में। तो हमने क्या किया यहाँ पे, are we going to school today, okay. So you need to remember the sentence should have an auxiliary verb. अगर ये सारे auxiliary verb है sentence में, so what are we going to do? We are just going to bring it first and then we are going to write our subject. यहाँ पे we are going to school. कौन जा रहा है school? We, right? So we हमारा subject है, are हमारा auxiliary verb है, और going जो है going to, right? That is our main verb, मतलब action word, जाना, कौन जा रहा है, we are going। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले हमारा ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे जो है are, उसके बाद हम लिखेंगे हमारा सब्जेक्ट, एंड देन वी आर गोइंग टू राइट आवर मेन वर्ब। और यही पैटर्न आपको फॉलो करनी है whenever you change a statement into an interrogative sentence, but the rule is it should have an auxiliary verb, okay. He is my friend, here we have is, राइट, तो उसको हमें आगे लेना है, इज़ ही माई फ्रेंड, यहाँ पे एक ही वर्ब है स्टूडेंट्स हमारे पास, राइट, इज़ ही है सिर्फ वर्ब सेंटेंस में, दूसरा वर्ब हमारे पास नहीं है, लेकिन इज़ हम लोग आगे लेकर आ सकते हैं, इसलिए हमने आगे ले लिया। शी, एंड इट इज़ नॉट एन एक्शन वर्ड, ओके, मेक श्योर इज़ नॉट एन एक्शन वर्ड। इज़ क्या है, सिर्फ बी वर्ब है, बी का जो फॉर्म होता है ना, इज़, एम, आर, वॉज, वर, वो वाले हैं, तो वो एक्शन नहीं दिखाते हैं। Now third one, she won't help me. Here won't we have as an auxiliary verb, तो उसको हमने आगे ले लिया है, won't she help me, right? Rama was crying, was Rama crying? And last one, they could reach on time. Here also we have an auxiliary verb, could, right? So we are going to change it into could they reach on time, okay? So students, I hope कि ये जो first rule है वो आपको समझ में आ गया कि इफ़ अ सेंटेंस हैज़ एन ऑक्सिलरी वर्ब, यू जस्ट हैव टू ब्रिंग दैट ऑक्सिलरी वर्ब फर्स्ट एंड देन यू हैव टू राइट योर सब्जेक्ट एंड देन द मेन वर्ब, और यू कैन से द एक्शन वर्ड, ओके। नाउ लेट्स सी द सेकेंड रूल विच हैज़ टू बी अप्लाइड। Here you can see for sentences with action verbs like walk, eat, play, we add do, does or did at the beginning of the sentence. The verb remains in its basic form. So here students आपको याद रखना है कि अगर सेंटेंस में हमने जो पीछे यहाँ पर जो पढ़े, राइट, ये सारे जो हमने पढ़े ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये जो वर्ब्स पढ़े, मान लो ये सारे वर्ब्स आपके सेंटेंस में है ही नहीं, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक्शन वर्ड्स है, वी डोंट हैव एनी हेल्पिंग वर्ब्स, राइट, सिर्फ एक्शन वर्ड्स है जैसे कि वॉक, ईट, प्ले। तो हमको क्वेश्चन कैसे बनाना है, वी हैव टू ऐड डू, डज और डिड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, और जो हमारा एक्शन वर्ड है वो बेसिक फॉर्म में आ जाएगा,
मतलब जो बेस फॉर्म होता है वर्ब का वो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो दे रन इन द फील्ड। नाउ योर स्टूडेंट्स व्हेन यू यूज़ डू, डज और डिड, आपको एक और चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि हम डू किसके लिए यूज़ करते हैं, डज कब यूज़ करेंगे और डिड कब यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। सो व्हेन आर यू गोइंग टू यूज़ डू, वी आर गोइंग टू यूज़ डू एंड डज, दोनों हम प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ करेंगे, राइट। अगर आपका जो एक्शन वर्ड है, राइट, जो मेन वर्ब है सेंटेंस का, अगर वो प्रेजेंट टेंस में है तो हमें डू या डज यूज़ करना है। डू हम आई, यू, वी और दे के साथ यूज़ करेंगे, है ना। फिर डज हम यूज़ करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी एंड इट। ओके, एंड वी आर गोइंग टू यूज़ डिड विथ पास्ट टेंस, सबके साथ। जब हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में होगा तो हमें डिड यूज़ करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? सो यू नीड टू रिमेंबर कि व्हेन अ सेंटेंस डज नॉट हैव एन एक्शन वर्ड, right, if a sentence does not have an auxiliary verb, अगर सिर्फ एक्शन वर्ड है उसके अंदर, तो हमें क्या यूज़ करना होगा सेंटेंस क्वेश्चन बनाने के लिए, डू, डज एंड डिड। डू और डज हमको यूज़ करना है व्हेन योर सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस। ओके, you need to use do and does when your sentence is in present tense। उसमें does स्पेसिफिकली हम थर्ड पर्सन के लिए यूज़ करते हैं सिंगुलर, और बाकी सबके साथ हमें यूज़ करना है do। और अगर मान लो आपका सेंटेंस पास्ट टेंस में होता है तो आपको यूज़ करना है did। एंड when you use do, does and did, आपका जो एक्शन वर्ड है वो बेसिक फॉर्म मतलब प्रेजेंट फॉर्म में आ जाएगा। जैसे कि मान लो अगर वॉक प्रेजेंट टेंस है, राइट, बेसिक फॉर्म है, और सेंटेंस में वॉक्स लिखा है, या फिर पास्ट टेंस होगा तो वॉकड लिखा होगा। अगर ये दोनों भी लिखे हैं तब भी जब हम क्वेश्चन बनाएंगे वी आर गोइंग टू ब्रिंग अवर वर्ब इन द बेसिक फॉर्म। मतलब डू दे वॉक, डज ही वॉक या डिड ही वॉक, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, मान लो आपका सेंटेंस पास्ट टेंस में है, ही वॉकड अ माइल। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल ओवर हियर, सॉरी। He walked a mile. So here students, we don't have any other verb except the action word that is walked, right? तो जब हम इसको क्वेश्चन बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, when we will make a question we are going to write did, क्योंकि वो past tense है, right? फिर he और walked का हो जाएगा सिर्फ walk, did he walk a mile, and then question mark. okay, so you need to remember, अगर मान लो कि आपका सेंटेंस ऐसा लिखा है, she plays a game, राइट। सो यहाँ पे ये सेंटेंस जो है वो हमारा प्रेजेंट टेंस में है ना। लेकिन आपको जैसे आगे पढ़ा होगा आपने कि व्हेन वी हैव थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके साथ हमारा जो वर्ब होता है वो भी सिंगुलर होना चाहिए, है ना। और अगर आपका वर्ब सिंगुलर है प्रेजेंट टेंस में तो उसमें एस होगा, राइट। अगर वर्ब प्लूरल है तो उसमें एस नहीं होगा। लेकिन अगर आपका वर्ब सिंगुलर है, बिकॉज योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, राइट, तो उसके साथ आपका जो वर्ब है उसमें एस लगा होगा। नाउ योर दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस एंड द सब्जेक्ट इज शी, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो हम क्या यूज़ करेंगे, डू या डज? व्हाट आर वी गोइंग टू यूज़ हियर? वेल, वी आर गोइंग टू यूज़ डज, राइट।
उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, एंड देन here we are not going to write plays, we are just going to write play. Does she play a game? And then question mark. Okay, let's see the example given over here. They run in the field. So do they run in the field, right? क्योंकि यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे रन जो है वो हमारा वर्ब है और उसके साथ का जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल, राइट? तो उसके लिए हमें यूज़ करना है डू, है ना? डू दे रन इन द फील्ड. ओके, नाउ लेट्स सी द सेकेंड वन. फॉर द सेंटेंसेस विथ हैज़, हैव और हैड, we add do, does और did at the beginning of the sentences. अगर सेंटेंस में मान लो हैज़, हैव या फिर हैड है, राइट, तब भी हमको क्या यूज़ करना है? डू, डज और डिड. और वही वाला रूल अप्लाई करोगे आप लोग यहाँ पर भी. डू डू फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए, राइट? जैसे हमने अभी पढ़ा था, डू प्रेजेंट टेंस में हम सबके साथ यूज़ करते हैं एक्सेप्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर, और डज हम यूज़ करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर प्रेजेंट टेंस, और डिड हम यूज़ करते हैं हमारे वी आर गोइंग टू यूज़ डिड along with the past tense. Okay, and you need to remember one more thing students, कि यहाँ पे देखो श्वेता has many pencils. So when we are using does along with it, हम यहाँ पे have यूज़ करेंगे, has नहीं यूज़ करेंगे. ठीक है, अगर सेंटेंस में have है तो वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा. लेकिन मान लो कि अगर आपके सेंटेंस में has है, तब भी अगर आप डज यूज़ करते हो थर्ड पर्सन के लिए, देन यू हैव टू चेंज योर हैज़ इनटू हैव. ओके, डज श्वेता हैव एनी पेंसिल? So students, as you saw that if a sentence has in it and if we are using do or does, we have to change has into have, right? In the same way अगर मान लो sentence में had होता है, जैसे कि श्वेता had many pencils, right? Now here students, we don't have has or have, we have had, right? इसका मतलब ये जो हमारा सेंटेंस है वो पास्ट में है, right? This sentence is in past tense. तो हमको do, does या did में से did यूज़ करना पड़ेगा, है ना? लेकिन हम had की जगह पर have यूज़ करेंगे. ओके, इंस्टेड ऑफ had we are going to use have. So let's see the sentence. So how are we going to form the question? सबसे पहले हम लिखेंगे did, right? श्वेता have many pencils? Question mark. So here students, when we use did to form a question, हमारा जो had था वो have बन जाएगा. In the same way जैसे कि has बन जाता है have. अगर मान लो सेंटेंस में have पहले से ही है, जैसे कि you have many pencils, right? So here we already have जो हमको दिखाता है कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में है, राइट? लेकिन यू के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? डू, डज या डिड. क्या यूज़ करना है हमको यू के साथ? वी आर गोइंग टू यूज़ डू, राइट? तो वी विल राइट डू यू हैव मैनी पेंसिल्स? क्वेश्चन मार्क. ओके, so students, I hope that you are clear with the rule of do, does and did. You need to be very clear about it. अगर आपके sentence में आपके पास auxiliary verbs है, is, am, are, was, were, would, may, can, right? तो आप वही use करोगे. You are just going to bring them ahead और subject उसके बाद में. लेकिन अगर sentence में
सिर्फ एक्शन वर्ब्स है, ओनली एक्शन वर्ड्स है हमारे पास, देन वी आर गोइंग टू यूज़ डू, डज और डिड। डू और डज हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करेंगे, उसमें डू यूज़ होगा प्लूरल के साथ और आई और यू के साथ, और डज यूज़ होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, है ना। और जो डिड है वो हमें यूज़ करना है पास्ट टेंस में। एंड वेन एवर वी आर यूजिंग डू, डज और डिड, हमारा जो एक्शन वर्ड है वो आ जाएगा वापस बेस फॉर्म में, मतलब जो विदाउट एस है या फिर विदाउट ईडी है वो वाला फॉर्म, राइट, बेस फॉर्म में आ जाएगा। और अगर सेंटेंस में हैज़ है या फिर हैड है, राइट, तो दोनों को हम चेंज करके यूज़ करेंगे हैव, अलोंग विथ डू, डज और डिड, अलोंग विथ डू, डज और डिड। अगर हैव है तो वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा, बट इफ़ इट हैज़ तो हम डज लगाएंगे, लेकिन डज के साथ हैज़ की जगह पर हो जाएगा हैव। और अगर हैड है सेंटेंस में तो हम लिखेंगे डिड, है ना, तो डिड के साथ भी हैड नहीं लिखेंगे, हैव लिखेंगे, ठीक है। So students, I hope that you are clear with all the rules. So let's start the exercise given over here. You need to form yes or no question with each of the sentences. And remember to add a question mark. Because we are forming questions, you need to remember to put the question mark. Now students, I am going to show you one or two. Rest of them are homework for you. Okay, let's see the first sentence. This pen is yours. Now here students, we have an auxiliary verb is, right? तो उसको हमें पहले लेना है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट जो है दिस पेन, राइट, एंड द लास्ट थिंग यू आर गोइंग टू राइट इज योर्स, एंड देन क्वेश्चन मार्क, इज दिस पेन योर्स, राइट। लेट्स सी द सेकेंड वन, शी विल गो टू दिल्ली टुमारो। सो हियर ऑल्सो वी हैव एन हेल्पिंग वर्ब विल, है ना, और सब्जेक्ट क्या है हमारा, कौन जाने वाला है, शी। तो हमको क्या करना है, वी आर गोइंग टू राइट आवर हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट, मतलब विल, उसके बाद सब्जेक्ट शी, गो टू न्यू दिल्ली टुमारो, question mark, right? Now students, the rest of them are homework for you. Please try it and make sure that you are writing it with pencil. In case if there is any mistake, you need to rectify it. Okay, we would be checking the answers in the next class, so please do this homework. Okay, आपको जितना आता है आप करना, वरना हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पूरी एक्सरसाइज करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।